सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग इसको जो आपका एचएसओ का टेस्ट हुआ था, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हेन यू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ the number increases by 18. When you reverse the digit of the number 13, the number increases by 18. That means जैसे कोई नंबर, हमारे पास नंबर है 13, and if I reverse the digits, that is if I make it 31, so the difference between 31 minus 13 is equal to 18. Now the question is asking, how many other two digit number increases by 18 when their digits are reversed? हमें बताना है कि ऐसे और कितने टू डिजिट नंबर हैं जो कि 13 से इंक्रीज होंगे, जो कि 18 से इंक्रीज होंगे when the digits are reversed, when the digits are reversed. Tens place is equal to x and units place is equal to y. तो हमारा जो नंबर हो जाएगा that will be 10x plus y, and my new number will be equal to 10y plus x. Right? अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो my difference will be 10y plus x minus 10x plus y. That gives me my difference as 9y minus 9x. Now this difference is given to me as 18. So y minus x will be equal to 2. अब मुझे ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं दोस्त जहां पे y minus x is equal to 2, and remember we can only go from 0 to 9, and one thing more, x cannot be equal to 0. x जो है मेरा वो 0 नहीं हो सकता है. So now what we will do is we will write the pairs. We were supposed to find y minus x is equal to 2. ठीक है, और x जो है my x cannot be 0. तो पहला जो पेयर होगा वो मेरा हो जाएगा 1, 3. दूसरा पेयर हो जाएगा 3, 5. My third pair will be 5, 7. My fourth pair will be 4, 6. 4, 6 is also one of my pair. One next pair will be 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Next will be 6, 8. Next will be 7, 9. बस. तो देर आर टोटल 7 पेयर्स. अब इसमें बोला ये है दोस्त कि 13 को मुझे नहीं लेना है, बिकॉज आई हैव टू काउंट हाउ मेनी अदर टू डिजिट नंबर्स. तो आई एम नॉट सपोज टू काउंट 13. So there will be total 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 6 pairs. And remember one more thing, my friends, that here the reversal of digits is not allowed. Digits को आप reverse करके आप पेयर नहीं बना सकते. आप ये नहीं कह सकते कि 35 and 53 will be one pair. Why ऐसा आप इसलिए नहीं कह सकते? Because here the tens place is greater than the ones place. ठीक है, इसलिए आप 35 और 53 को आप काउंट नहीं कर सकते. द आंसर विल नॉट बी 12, द आंसर विल बी 6 ओनली. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6. Question number 2. If n is equal to 1980, then I have to find its number of even factors. अगर तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए अपन ने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं. So first of all, I will factorize this n equal to, I will factorize this and I will see what are its prime factors. So first of all, I will factorize it and I will. So after factorization, I know that n is equal to 1980, which is equal to 2 square into 3 square into 11 into 5. कैसे सर, कैसे मान लूं मैं आपकी बात? मत मानो ना, मत मानो, मैं नहीं बोलता मानो. मल्टीप्लाई करके देख लो. 3 square is equal to 9. 9 4 is 36. 36 into 5 is 180, and 180 into 11, my dear friends, is nothing but 1800 plus 1800 plus 180, which is equal to 190. So my prime factorization is correct. I don't have any doubt about it. Now what I will do is number of even factors is equal to total factors
फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ा है। ठीक, अब कैसे निकालेंगे टोटल फैक्टर्स माइनस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स? टोटल फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला बेटा हम लोग पढ़ के आए हैं। क्या फॉर्मूला था टोटल फैक्टर्स निकालने का? टोटल फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला था पावर्स जितनी है पावर्स को मल्टीप्लाई कर, पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बी 2 plus 1 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1 plus 1 माइनस ऑड फैक्टर्स के लिए क्या होगा? आप टू वाली चीजों को कंसीडर नहीं करोगे। सो जब आप टू वाली चीजों को नहीं कंसीडर करोगे तो इट विल बी 2 plus 1 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 1 plus 1। अब इसको सॉल्व करना है तो एक काम करो, 2 plus 1 is equal to 3, 3 into 2 is 6, 6 into 2 is 6 into 2 is 12, 12 को आप कॉमन ले लो, so this will be 2 plus 1 is 3, 3 minus 1, so finally it will be 12 into 2 which is equal to 24, so the correct answer of this question is 24, 24 is option number B, so the correct answer of this question was option number B which is equal to 24, a very simple question indeed जो कि आप सभी से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी इंटीजर्स, ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कि 125 रेज टू द पावर 3124 के मल्टीपल हैं और 125 रेज टू द पावर 3127 के फैक्टर्स हैं। अब देखो भाई, ये सवाल करने से पहले ये 125 से तो कुछ काम चलने वाला नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे किसी नंबर की बहुत बड़ी पावर दी हो, सबसे पहला काम है एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए आई नो दैट 125 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3, सो 125 raised to the power 3124 is nothing but 5 raised to the power 3 raised to the power 3124। अब इसको जो है I am going to write as 5 raised to the power 9372। कैसे आया बेटा? सिंपल सी बात है, जब पावर्स a raised to the power m raised to the power n लिखते हैं ना तो it becomes a raised to the power mn। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो 8th क्लास की क्लास आके अटेंड कर लेना, वहां पे ये चीजें मैंने अभी 2 दिन पहले बताई है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 3 raised to the power 3 raised to the power 9372। now what I will do is I will write 125 raised to the power 3127 as 5 raised to the power 3 raised to the power 3127, and after solving it becomes 5 raised to the power 9381। it becomes 5 raised to the power 9381। अब सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज इक्वल टू 5 raised to the power 9372 and this is equal to 5 raised to the power 9381। अब देखो सवाल को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द क्वेश्चन इज सेइंग ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो कि 5 raised to the power 9372 के मल्टीपल्स होंगे और 5 raised to the power 9381 के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू मॉडिफाई दिस क्वेश्चन अ लिटिल बिट। ठीक है, लेट अस, जो मैं करने जा रहा हूं वो समझने की कोशिश करना। 5 raised to the power 9372 है ना। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 5 raised to the power 9373। क्या ये नंबर 5 raised to the power 9372 का फैक्टर है? क्या ये नंबर 5 raised to the power 9372 का मल्टीपल है? Yes, this number can be written as 5 into 5 raised to the power 9372। तो हो गया ना बेटा मल्टीपल, हो गया ना मल्टीपल। तो ये जो नंबर है 5 raised to the power 9373, ये वाला नंबर इसका मल्टीपल है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं मल्टीपल्स ऑफ
मल्टीपल्स ऑफ 5 रेज टू द पावर 9372 कौन कौन से हो जाएंगे बेटा इसके मल्टीपल्स? कौन कौन से मल्टीपल्स हो जाएंगे इसके? देखो जरा आप लोग ध्यान से देखो कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे इसके। 5 रेज टू द पावर 9373, ठीक है, 5 रेज टू द पावर 9374, 5 raised to the power 5 raised to the power 9375 dot up to 5 raised to the power 9381। इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे तो हमारे क्वेश्चन ही नहीं है, बस अपन यही कर जाएंगे। और 5 raised to the power 9372 की तो अपना मल्टीपल है ना भाई, तो देयर आर टोटल 10 मल्टीपल्स, ठीक है, यहां से लेके 9372 से लेके 9381 तक सारे जितने भी नंबर होंगे सारे के सारे 5 रेज टू द पावर 9372 के मल्टीपल होंगे। अब हम बात करते हैं 5 रेज टू द पावर 9381 के फैक्टर्स। तो 5 रेज टू द पावर 9381 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखो इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं 5 रेज टू द पावर 9372 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 9 लिख सकता हूं। दैट मींस 5 रेज टू द पावर 9372 इज ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर। क्या मैं 5 रेज टू द पावर 9381 को ऐसे लिख सकता हूं 5 रेज टू द पावर 9372 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 8? यस, लिख सकता हूं। सॉरी 9373 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 8, यस लिख सकता हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं 5 रेज टू द पावर 9374 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू द पावर 7? लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पे जितने भी मल्टीपल्स हमें मिले थे ना 9 रेज टू द पावर 5 रेज टू द पावर 9372 के, वो सारे के सारे नंबर्स इस 9381 के 5 रेज टू द पावर 9381 के फैक्टर्स भी हैं। This is what I wanted to explain, because 5 raised to the power 9381 can be written in the term of 5 raised to the power 9372 into 5 raised to the power 9, 5 raised to the power 9373 into 5 raised to the power 8. So and dot dot dot. So thus I can say that all the multiples of 5 raised to the power 9372 are indeed the factors of 5 raised to the power 9381. So there were total 9372 से 9381 तक there are total 10 integers. There were total 10 integers. So the answer of this question will be 10. कैसे सर, कैसे 10 हुआ? एक 9372, 9373, 9374, 9375, 9376, 9377, 9378, 9379, 9380, 9381. So there are total 10. There are total 10 integers which are multiples of this number and factors of this number also. So this is how you were supposed to solve this very easy, not easy, but yes, a very simple question. All right. So the next question is, what is the number of even factors of 36,000? अच्छा एक बात बताओ, क्या हमारे पास more than two twos हो सकते हैं? Can we have more than one two? We cannot have more than one two, my dear friend, क्योंकि अगर हमने एक टू से ज्यादा ले लिया तो हमारा जो नंबर हो जाएगा that will be divisible by 36. That will be divisible by 36. If we take more than one two तो हमारा जो नंबर होगा वो divisible हो जाएगा 36, ठीक है। So there is only one way in which we can select two, that is हमारे पास एक टू होना चाहिए। थ्री को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो थ्री को सेलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास एक ही तरीका, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस एक्सेप्ट टू सेलेक्ट 3 रेज टू द पावर 2। अब बात क्या आती है, okay, so the question number 4 is, what is the number of factors of 36,000 which are divisible by 9 but not divisible by 36? What is the number of even factors of 36,000
which are divisible by 9 but not divisible by 36. तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि फैक्टर्स निकाल लो, उसके बाद से देख लो भाई कौन कौन से 36 से डिविजिबल है, और उसके बाद अनिमेश विद द अवार्ड ले लो, क्योंकि इन दैट वे यू विल बी एबल टू सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये है मेरे दोस्त, इस नंबर को फैक्टराइज करो। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी ऐसा नंबर आता है, कभी भी ऐसा केस आता है जहां पे बहुत बड़ा नंबर दिया हो, वहां पे उस नंबर को आपको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो पहले उस नंबर को फैक्टराइज करते हैं, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे हैं। So I can write 36,000 as 2 raised to the power 5 multiplied by 3 raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 3. So if you will solve this, you are going to get this only. I'm pretty sure about it. If you don't believe me, you can check it. So it will be 2 raised to the power 5 multiplied by 3 raised to the power 2 multiplied by 5 raised to the power 3. अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 36,000, यानी कि मुझे सबसे पहले तो इवन फैक्टर्स निकालना है। पहली चीज, इवन फैक्टर्स निकालने के लिए मेरे दोस्त, मेरे पास एक 2 का कंपोनेंट मिनिमम तो होना ही चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, विच आर डिविजिबल बाय 9 बट नॉट डिविजिबल बाय 36। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि 2 एक इवन फैक्टर जो कि 9 से भी डिविजिबल हो, दैट मींस इट विल बी डिविजिबल बाय 18। इवन फैक्टर जो कि 9 से डिविजिबल है, दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 18, but it is not divisible by 36. So my dear friend, basically what I want to find here, that multiples of that factors of 36,000 which are divisible by 18 but not divisible by 36. Now the first question is, क्या ऐसे नंबर्स होते हैं? यस होते हैं। देखो 18 थ्रीजा, 18 वनजा, ठीक है, 18 fives are. So basically what I am required to find here is odd factors of this 18 multiplied by 20,000. We are required to find odd factors of 20,000. हमें अगर 20,000 कैसे है सर? मैंने क्या किया, मैंने 36,000 को आई रोट इट एज 18 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो अगर मुझे 20,000 के ऑड फैक्टर्स मिल जाते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। तो 20,000 के ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो आओ, लेट अस सी व्हाट वी विल डू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ऑड फैक्टर्स ऑफ 20,000। So if I try to simplify 20,000, so I will write 20,000 as, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 2 को कॉमन ले लिया, so it will be 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 2. So it will be basically 2 into 3 square multiplied by 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 3. अब दोस्त मेरे पास मुझे ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, ऑड फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर के ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दिस, सो आई विल बी कंसर्न्ड विद दिस ओनली। सो माय क्वेश्चन रिड्यूसेस टू find the number of odd factors of find number of odd factors of 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 3, and I know with the level of intelligence that all you have, the answer will be 3 plus 1 which is equal to 4. So the answer of this complicated yet very simple question will be 4. एक और तरीका था यहाँ पे
36,000 के ऐसे फैक्टर्स निकाल लो जो कि 36 से मल्टीप्लाई 36 के मल्टीपल हो, और ऐसे फैक्टर्स निकाल लो जो कि 18 के मल्टीपल हो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यू विल गेट द आंसर. But this is, I guess, a pretty simpler method of solving this question. So this is how you were supposed to solve this very easy question. All right. So the next question is, how many factors of 36288 are perfect cube? तो सबसे पहला तरीका वही है भाई कि इसके फैक्टर्स निकाल लो और चेक कर लो कौन कौन से परफेक्ट क्यूब है. एंड जो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं 9, 4, 6, 8, तो उससे आपको सॉल्व करने में बहुत सारा टाइम लगेगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट एलिमिनेशन विद टाइबॉट. लेकिन आपको ऐसे नहीं करना. मैं नहीं चाहता कि आपको विद टाइबॉट मिले, मैं चाहता हूँ आपको सिलेक्शन. तो आपको क्या करना होगा दोस्त, सबसे पहले आपको इस नंबर को फैक्टराइज करना पड़ेगा. फैक्टराइज कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर्स के टर्म में फैक्टराइज करेंगे. तो फैक्टराइज जब आप करोगे 36288, when you will factorize it, you will get the result as 2 raised to the power 6 multiplied by 3 raised to the power 7 multiplied by 7. अब being a teacher, I have this liberty कि मैं फैक्टराइजेशन को I can write by seeing. तो ये मेरे पास लिखा हुआ, आपको ये एग्जाम में करना पड़ेगा. So the after factorization you will get it as 2 raised to the power 6 into 3 raised to the power 7 into 7. Now what the question is saying that how many factors are perfect cube. तो perfect cube होने के लिए बेटा कब perfect cube होगा, जब 2 raised to the power 6 की पावर. अब let us try to analyze the situation little bit. 2 raised to the power 6 की पावर 2 raised to the power 6 जो है इस नंबर के फैक्टर्स में, इस नंबर के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, 6 plus 1 into 4 plus 1 into 1 plus 1. ठीक है, इतने इसके फैक्टर्स होंगे. 7 into 5 35 into 2 70 फैक्टर्स होंगे इस नंबर के टोटल. अब इन 70 फैक्टर्स में से एक कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें 2 will be of the form of 2 raised to the power 0. सिमिलरली एक कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें 3 will be of the form of 3 raised to the power 3, और एक ऐसा नंबर आएगा जहां पे 7 will be of the form of 7 raised to the power 0. तो वो वाला जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा, वो एक परफेक्ट क्यूब होगा. तो इस तरीके से आपको सारे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से केस में हमारे पास परफेक्ट क्यूब हो सकता है. तो नाउ 2 जो है इट कैन फॉर परफेक्ट क्यूब 2 कैन हैव द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 3 और 2 raised to the power 6. So there are 3 possible choices. Similarly, this 4 will have 3 raised to the power 4 will have 2 choices. Actually it will have only 2 choices. एक हो जाएगा या तो it can be of the form of 3 raised to the power 0 or it can be of the form of 3 raised to the power 3. And my 7 raised to the power 1, it will have only one choice, that is it can be only in the form of 7 raised to the power 0. So there will be total 3 into 2 into 1 which is equal to 6 number of choices. So ऐसे 6 नंबर्स ही होंगे इस 36288 के फैक्टर्स में जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे. क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने परफेक्ट क्यूब की कंडीशन को थोड़ा सा एनालाइज किया. तो परफेक्ट क्यूब की कंडीशन को जब मैंने एनालाइज किया मेरे दोस्त, तो मुझे ये पता चला कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है, किसी नंबर को देख लो, सपोज करो 27, ठीक है, 27 इज ए परफेक्ट क्यूब. तो इट कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 3, है ना. 2 raised to the power 0 into 3 raised to the power 3. यहाँ पे 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 3 नहीं आएगा. या आप ऐसा लिख सकते हो किसी दूसरे नंबर को 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 3, that is 216. This number is a perfect cube. तो कहने का मतलब यह है कोई भी नंबर जब परफेक्ट क्यूब होता है तो उसकी पावर जो होती है वो 3 से 3 का मल्टीपल होती है, ठीक है, या उसकी जो पावर होगी, जो भी उसकी पावर होगी वो 3 से डिवाइड हो जाएगी. तो यहाँ पे सिंस द पावर वाज 2 raised to the power 6, और ये हमने पढ़ा है कि अगर पावर 2 raised to the power 6 है, इट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम इट्स फैक्टर, कैन टेक किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 raised to the power 6 आता है
या 3 रेज टू द पावर 4 आता है, तो इट कैन टेक 7 वैल्यूज. दिस 2 रेज टू द पावर 6 कैन टेक 7 वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 रेज टू द पावर 0 till 2 raised to the power 6. Similarly, this 3 raised to the power 4 can take 5 values starting from 3 raised to the power 0 to 3 raised to the power 4. This can take 2 values. इसीलिए ये जो रिजल्ट आया 7 into 5 into 2 that is equal to 70. अब हमें इसमें से परफेक्ट क्यूब्स ढूंढने थे. परफेक्ट क्यूब्स कौन कौन से हो जाएंगे? या तो 2 रेज टू पावर 0 जब आएगा तब ये परफेक्ट क्यूब होगा, या 2 रेज टू पावर 3 आएगा तब एक परफेक्ट क्यूब होगा, या 2 रेज टू पावर 6 आएगा तब एक परफेक्ट क्यूब होगा. फर्दर इतने से बात नहीं बनेगी. अगर 2 रेज टू पावर 0 into 3 रेज टू पावर 4 कर दिए तब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होने वाला है. फर्दर it should have 3 raised to the power 0 or 3 raised to the power 3. 3 raised to the power 1 2 कर दिया तो बात नहीं बनेगी. Further, it should also have 7 raised to the power 0. So in totality, we are having 3 into 2 into 1, which is equal to 6. Total 6 numbers or 6 cases will be there, which are perfect cube. So this is how you will be required to solve this simple question. All right. So the next question is, if equal number of people are born on each day, find the approximate percentage of people whose birthday will fall on 29th of February if we are to consider people born on in 20th century, that is 1901 to 2000, and assuming that there is no death. तो क्वेश्चन का ये कहने का मतलब है दोस्त कि एक साल है, एक सेंचुरी है 1901 से 2000 ईयर तक, और यहाँ पे जो है हर दिन इक्वल नंबर ऑफ पीपल बॉर्न होते हैं. अपन मान लेते चलते हैं कि देयर आर एक आदमी एक दिन में पैदा होता है. तो हमको ये बताना है कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनका जन्मदिन 29 फरवरी को पड़ेगा. तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1901 से 2000 तक देयर आर कितने लीप ईयर्स, हाउ मेनी लीप ईयर्स आते हैं. चाहो तो एपी से कर सकते हो, या चाहो तो आप सिंपली you can calculate. So I will try to solve it by the use of AP. हमें ये पता है मेरे दोस्त कि 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में जो पहला लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा बताओ. 20th सेंचुरी में जो पहला लीप ईयर आएगा वो आएगा ईयर 1900, but that we are not supposed to count. So year 1904 will be the first leap year in 20th century, and year 2000 will be the last leap year in 20th century, and there is a difference of 4 years every time. So by using the concept of AP, I can calculate number of leap years. So number of leap years अपन ने पढ़ा है Tn is equal to a plus n minus 1 multiplied by d. So Tn was 2000, which is equal to 1904 plus n minus 1 multiplied by 4. इस दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई एम गेटिंग 96 is equal to n minus 1 multiplied by 4. Solving, I am getting n minus 1 is equal to 24 or n is equal to 25. That means there are total 25 leap years in 20th century. ठीक है, इसको जब अपन कैलेंडर पढ़ेंगे I will deal you in detail how you can call it, calculate it quickly. But even if you don't know, you can solve it. You can solve it by using the concept of AP. ठीक है, so there are total 25 years जो कि हमारे लीप ईयर्स होंगे. अब हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना, यानी कि 25 साल ऐसे होंगे दोस्त जिसमें कि 366 दिन होंगे. मुझे क्या निकालना है? I have to calculate the total. I have to calculate approximate percentage of people who are born on 29th of February. तो अगर एक दिन में मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि एक दिन में एक आदमी पैदा हुआ, तो टोटल पर्सन्स born in 20th century will be, अब देखो 100 साल तो ऐसे होंगे जिसमें सारे सालों में 365 दिन तो होंगे ही. इट विल बी 365 into 1.
प्लस ऐसे 25 साल ऐसे होंगे जहां पे 366 दिन होगा, तो प्लस 25 into 1। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सॉल्व इट, डोंट सॉल्व, ठीक है। एंड टोटल पर्सन, total persons born on born on 29th February will be nothing but 25 into 1। आप दोनों का रेशियो निकालो, यू गेट द रिजल्ट, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, यू विल गेट द रिजल्ट। सो द रेशियो विल बी परसेंटेज पीपल born will be equal to 25 divided by 365 into 100 into 1 plus 25 into 1। So इसको जब आप सॉल्व करोगे तो द रिजल्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 25 divided by 36525। जब आप इसको मल्टीप्लाइड बाय ऑफ कोर्स 100, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले काम करो 5 से डिवाइड कर दो। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, दिस विल बी 6 5 जा 30 60 सॉरी 7 5 जा 35 305। फिर से आप 5 से डिवाइड कर दो, so it will be roughly how much? 1 8 2 3 4 1461। So it will be roughly around 100 upon 1461। Even if I approximate it to 1400, अगर मैं यहाँ पे इसको 1400 भी ले लेता हूँ, क्योंकि देखो हमारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं इसको 1400 भी लेता हूँ तो इट विल बी 1 upon 14। 1 upon 14 is 0.7। 1 upon 14 कितना परसेंट होता है भाई, कोई बताएगा मेरे को, प्लीज टेल मी। So even if you are taking it as 100 divided by 1400, so it will come out to be as 1 divided by 14, and 1 divided by 14 जो होता है ना मेरे दोस्त, तो 0.0, that is 0.07 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे जो मेरे आंसर्स हैं, यहाँ जो मेरे आंसर्स हैं वो कैसे हैं, 0.3 0.5 0.8। तो 0.07 तो कोई है ही नहीं, 0.07 तो कोई है ही नहीं। So in that case, my correct answer will be option number D. And now, if you want to solve it, you will get the answer as 0.068%. So the correct answer of this question will be option number D, which is equal to none of these. And this is how you are required to solve this question. पहली चीज इसमें ये थी कि आपको ये पता करना था कि कितने लीप ईयर्स होते हैं। कितने लीप ईयर्स को पता करने के लिए हमने सबसे पहले अपन ने एपी का कंसेप्ट यूज कर लिया, वहां से अपन ने पता लगा लिया कि देयर विल बी टोटल 25 लीप ईयर्स। ठीक है, जब 25 लीप ईयर्स हो गए तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पर्संस बोर्न ऑन ईच डे आपने 1 मान लिया, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द क्वेश्चन वेरी इजीली। अगर आपको नंबर ऑफ पर्संस बोर्न ऑन ईच डे 1 नहीं मानना, कुछ और मानना, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व। So this is how you are supposed to solve these simple questions. So rest of the questions we will discuss later. Till then, bye bye, take care, sayonara.